And living with strict parents is you raise the best liars. Sorry, mom, dad. What if in life I will never know what could have happened? That would be my biggest regret. एक दूसरी लड़की से बात करते करते उसने मेरे यहाँ पे हाथ रख दिया मेरी थाई पे. Life is not one big step or one, you say, a leap of faith, right? Yeah. It is a leap of faith, but it is also small steps of courage that you take along your way. चीजें क्लिक होने से पहले you got scammed also a couple of times, no? So the red flags to look for were कि अगर तुम कहीं जा रहे हो agency में या casting उसमें and they ask you for money, it's a fraud. We got into acting because it was not a part of a rat race and then it became the rat race. अचानक से मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ गई थी मेडिटेशन के. तो it was like things are happening the same way, but that noise is gone. And welcome to Beyond the Spotlight with Garima. Our guest for today is one of my closest friends. She's an actor who has worked in Sisterhood on Amazon MX Player, and she's also going to be coming in a movie as a parallel lead very soon. She's also worked in ads like Kurkure, Naturals Ice Cream, and shot with Ajay Devgan, among many others. She's a small town girl from Dehradun all the way in the big city of dreams, Mumbai. Welcome, Soumya. Thank you so much for having me, Garima. Are you excited? Of course, I'm always excited to meet you. Okay, so I've told them about your work. Why don't you tell us something about your journey? You've summed it up pretty well, I believe. Small town girl, I'm from Dehradun, a town where dreaming of being an actor is like, what? Is that a job? So yeah, I started from there, entered the industry in my own way, like figuring things out. And yeah, now I'm here living, like, have started living my dreams. Just at the beginning, leading there and loving every bit of it. I saw your Kurkure ad recently. Oh my god, that was so crazy good. I think, oh my god, that bit. I know, right? It was like, so then I posted about it as well. I wrote that because this is a real thing, okay? My mom used to say बचपन में कि यार तू इतने कुरकुरे खाएगी तो एक दिन कुरकुरे बन जाएगी. So I literally wrote, मम्मी आपने बोला था ना कि इतने कुरकुरे खाएगी तो कुरकुरे बन जाएगी. लो बन गई कुरकुरे. I know. And it is my vibe only, and my mother also loved it so much. Yeah. So I had really a lot of fun. But has it always been this easy? Like, how did it all start? Like, let's start from the beginning. मतलब कितना beginning में जाना है तुम्हें? Like, I say, you said Dehradun में इस type की बात सोचना also was like a big thing, right? So actually coming to Mumbai, how did that happen? See, I would say I'm a, what do you call that? Con man होता है ना? I'm a con woman when it comes to this stuff, okay? Okay. So in a way that मुझे अगर मेरे मन की कुछ करनी है, and the part of being a female and living with strict parents is you raise the best liars. Sorry, mom, dad, but मतलब in a way that you find your way out. तो तुम मतलब इतना strategically सोचने लग जाते हो चीजों को. तो मैंने भी यही करा था कि when my parents told me कि okay you can't discuss भी नहीं करना, of course नहीं कर सकते हो आप. क्योंकि मेरे को तो साइंस लेने में इतना मतलब साइंस से when I shifted to commerce, it was such a big facade at my place. Oh my god. So I figured things out. I was like, okay, I'm gonna do जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ कर लेती हूँ, फिर इसमें आ जाऊंगी मीडिया फील्ड में, फिर मीडिया से आई डू दिस. सो इट वाज अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल, कुछ ट्राई करा, एक्सपेरिमेंट करा, फिर पेरेंट्स को बहुत वो करा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ ना. वो क्या होता है? साम दाम दंड भेद. Yeah, actually it was like beg, borrow, steal. Yeah. Like I was doing everything and I was figuring my way because I really wanted to, like I had seen some video or something. मैंने कुछ देखा था कि अगर मैं कुछ ट्राई नहीं कर रही हूँ तो मतलब, and what if in life I will never know what could have happened. That would be my biggest regret and I didn't want to live with that regret. In my head I had made up my mind कि okay, I'm in my 20s, this is the time to explore, perfect timing है, अभी ज्यादा responsibilities नहीं होती हमारे पास. तो अभी ही करना है तो जैसे भी करना है कर लेते हैं. And I just figured a way out. I convinced my parents. पहले मैंने बोला कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, मैं सिर्फ दिल्ली जा रही हूँ. अच्छा. Just to get trained, you know, nothing big, no big. It's like छोटा-छोटा bomb फोड़ना होता है ना. दिल्ली जा रही हूँ सिर्फ workshop. Then I was like, side by side I was doing some content writing stuff also.
तो फिर उसके बाद बॉम्बे का भी डिस्कशन हो तो पेरेंट्स वर लाइक नो, नॉट हैपनिंग। तुमने Pushed it a little too far. तुमने बोला था 1 साल के बाद तुम वापस आ रही हो, हाँ. एंड आई एम लाइक नहीं बट पापा प्लीज ना। I pulled that move. I've done that so many times. So I was like मैं 1 साल में जाऊंगी और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। Same. वो 1 साल It's still फिर ongoing. 6 महीने It's और फिर still 6 ongoing. and my mom dad are like कितना मैनिपुलेट करेगी तू, 1 साल बोल के गई थी, तुझे पता है कितना टाइम हो गया है, तेरे 6 महीने नहीं खत्म होते, तेरा 1 साल नहीं खत्म होता। जब तुम्हें एक्चुअली कुछ करना होता है तो यू गेट इनटू दैट जोन, Yeah. राइट? सो दैट वाज द जोन। मतलब कुछ क्लिक हुआ, फिर कुछ क्लिक हुआ, फिर एंडेड अप हियर एंड इट वाज नॉट इजी। और मैं ना बहुत पता नहीं किस ईगो से मैं आ रही थी, एंड सम नेक्स्ट लेवल, इट वाज नॉट, आई वोंट कॉल इट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बहुत ग्राउंडेड था, बट इट वाज वेरी एक्सटर्नल सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाला। हाँ. कि बहुत फर्स्ट ईयर में मैं आई, मेरा शहर ये बिल्डिंग ले लूंगी And पूरा फुल ऑन डेलुलु होते हैं ना, बट यार थोड़ा नीडेड होता है डिलीलू। बहुत ज्यादा था यार, थोड़ा सा अच्छा. मुझे कंट्रोल करना पड़ा। अच्छा अच्छा। लाइक बट इट वाज आल्सो इन अ जोन दैट या शाहरुख खान फैंस ऑफ कोर्स, उनकी वीडियोस देख देख के भी वो इंस्पिरेशन मिलती थी कि यू नो जस्ट से इट आउट लाउड इवन इफ यू आर अफ्रेड ऑफ इट। तो मेरा एक्टिंग का भी ये था, जब मुझे एक्टर बनना भी था, जस्ट सेइंग द वर्ड एक्टर वाज सच अ बिग डील फॉर मी। सेम लाइक ओह माय गॉड, इंस्टा पे बायो पे आप एक्टर लिखते हो, आप लाइक कैसे लिखूं, लोग क्या सोचेंगे, ये वो, लाइक छोड़ना यार। I had to have done, I think 3 of my projects came out, उसके बाद I was finally able to say I'm an actor. सेम मेरा भी कुछ ऐसा था कि आई थिंक आई डिड समथिंग लेजिट, उसके बाद आई वाज लाइक, ओह आई एम एन एक्टर। Now I can call myself. Otherwise, I always used to either call myself a struggling actor or a budding actor. And then one day someone told me, they were like, if you call yourself only a struggling actor, aren't you manifesting more of that? हाँ. And I was like, okay, let's call myself budding actor. And then I was like, And थोड़ा then, सा for me also something like this happened कि I was calling myself an aspiring actor. हाँ. And then I read somewhere कि if you're auditioning, if you're doing plays, you're already an actor. I'm like, yeah, this is the process. So why am I like, what the hell? बोलने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? So yeah, वही था, थोड़ा स्ट्रगल था आने में, फिर आने का स्ट्रगल अलग, तो everything. इधर आने के बाद क्या स्ट्रगल हुआ? Figuring things out, it's so like the way industry, it's not like an organized industry, right? It's not like you'll go with your resume कि hey, this is my resume, please go through it, CV देखेंगे वो आपकी qualification, oh ये language आती है, आजा audition चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। Yeah. So it took a very long time to figure things out, how things worked in the industry. I sucked at networking. I always have. I still do. Yeah. So I mean, networking is one of the biggest parts of. yeah, and connecting with the right people. Yeah. तो initially मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं networking कर रही हूँ, मुझे बहुत negative उसका connotation था मेरे दिमाग में कि मैं किसी से कुछ छीन रही हूँ, मेरा मतलब का काम है। But फिर मेरा मतलब perspective change हुआ इस चीज को लेके कि especially in our industry, it's not about मतलब की दोस्ती और Yeah. मतलब की networking. It's all about helping each other out. Yeah. Because it's not a work जिसमें आप अकेले आगे बढ़ोगे. You need people. एक फिल्म कैसे बनती है? It's not just me. I'm gonna put on my selfie camera and फिल्म बन गई. लाइटिंग का अलग इंसान होता है, सिनेमेटोग्राफर अलग होता है, पूरा मतलब ईट होती है, सिमिट, या इट्स एवरीथिंग. सो इट टुक अ व्हाइल टू रियलाइज दैट, एंड देन व्हेन आई कुड फिगर आउट कि मेरी इंटेंशन मैं जो सोच रही थी वो नहीं थी, देन इट बिकेम इजियर टू टॉक टू पीपल. एंड देन धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चीजें क्लिक होने लग गई. एंड या But I think वो चीजें क्लिक होने से पहले you got scammed also a couple of times, no? Oh my God, yeah. So for me, yeah, मैं ना बहुत प्रिपरेशन करके आई थी बॉम्बे with in a way that I used to watch all of these YouTube videos. And बहुत ऐसे मेंशन करते थे ये लोग कि ऐसे स्कैम्स होते हैं, they'll ask you for money and so the red flags to look for were कि अगर तुम कहीं जा रहे हो एजेंसी में या कास्टिंग उसमें and they ask you for money, it's a fraud. Second was कि वही सेम registration fees कुछ करेंगे. Third would be very shady work and fourth would be too good to be true. Something is being offered to you. Yeah. So I came prepared with that mindset and I was honestly very like careful with everything. So we were a couple of people. We had gone to this agency where auditions होते थे and it is still a legit agency. Okay, it still exists. It's legit. वहाँ हम गए, हमने audition दिया. There was this new apparently producer that wanted to make music video / web series / so for him he had everything prepared. Okay, उसका music video भी prepared था, music का draft भी prepared था. उसने बोला कि मैं ये तो मेरा draft है, मैंने गाया है कि I'm gonna make a professional singer sing it. तो ऐसे करके ना वो थोड़ा सा आपको कुछ दे देता था and then he used to घुमाओ that बात.
थोड़ा सा होप दे दिया, थोड़ा सा फैक्ट दे दिया, बाकी घुमा दिया। बट उसने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे थे, तो वो वाला तो रेड फ्लैग था नहीं, बट गट फीलिंग गलत आ रही थी। एंड कुछ शेडी काम भी नहीं था कि ऐसे कुछ बोल्ड शूट हो या फिर यूजुअली द थिंग्स यू केयरफुल अबाउट, वैसा भी कुछ नहीं था। एंड वी वर 4 people, like 4 freshers, for 4 of us we all had this gut feeling that this guy is not right, but we just couldn't figure out कि क्या सीन है। शूट डिसाइड हो गया, शूट डेट डिसाइड हो गई, हमें एडवांस मनी मिल गया, उससे पैसे भी देते थे हमें एडवांस, वट एवर सम इट वाज, थोड़ा सा साइनिंग अमाउंट। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और शूट से एक दिन पहले हम हमारी एक कॉमन फ्रेंड है जो मैनेजर काइंड ऑफ, शी मैनेजेस ऑल ऑफ दिस आर्टिस्ट्स एंड स्टफ, तो उसके पास गए टू हेल्प अस, लाइक गाइड अस, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर हेड। Turned out she made a few calls and she's like, because this guy used to always tell कि मैं तो T Series के ऑफिस अभी कल ही होके आया हूँ, मैंने फाइनलाइज कराया कॉन्ट्रैक्ट, एंड he used to send the contract on the group, like वो अपने कैनवा पे या कहीं पे बना के, तो हाँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा प्रोफेशनली लिखा होता था कि लाइक दिस सौम्य ओनियाल हैज बीन साइंड अप फॉर दिस म्यूजिक वीडियो, एंड दिस पार्टनर का नीचे साइन होता था, उसका साइन होता था, एंड ऐसे करके उसने दो कॉन्ट्रैक्ट और भेजे थे, और मुझे बोला था कि सौम्या, congratulations, you have been logged as the lead for our next film starring आयुष्मान खुराना। I was like, आयुष्मान खुराना की बंदी मैं लग सकती हूँ क्या? मेरे दिमाग में कास्टिंग वाला माइंड चल रहा था उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम लाइक, मतलब समटाइम्स यू फील ना एज अ फ्रेशर कि ओह फक, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ओह माय गॉड माय लाइफ। फिर उस बंदी ने हमें धीरे धीरे करके बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आया नहीं है, nobody knows this name in the industry and I've been in the industry for 10-15 years, so कुछ गड़बड़ है। She was also like, because she had been in the industry for so long, but उसके red flags visible नहीं थे, तो she was like, कुछ gut feeling मेरी भी गलत आ रही है, just don't go, can the shoot, legal वगैरह वो नहीं करेगा। हम सब ने लास्ट मिनट कैन करा वो शूट, एंड अगले दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन उसने कुछ नए आर्टिस्ट को बुला के वो म्यूजिक वीडियो शूट कर दी थी, बट आफ्टर 2-3 months वी गॉट टू नो दैट गाय वाज एक्चुअली अ स्कैमर जो कोलकाता से था, और उसने कोलकाता में ऑलरेडी एक फ्रॉड करके 20-30 लाख रुपए लूट रखे थे लोगों के। पुलिस फ्रॉम कोलकाता हैड बीन लुकिंग फॉर हिम, बट लाइक तुमको पैसे दे दिए थे फिर? इट वाज लाइक, आई डोंट नो, इट माइट हैव बीन हिज ड्रीम टू डू फिल्म्स, बट ही वाज जस्ट नॉट, he just wanted everything to be done in his way. उसने म्यूजिक वीडियो के लिए बाय द वे उसने बोला था सिंगर से गवाऊंगा, वो उसने सिंगर से नहीं गाया, उसने कहा मैं ही गा रहा हूँ। और लाइक धीरे धीरे चेंज होती गई, चेंज होता रहा कि गवाऊंगा, then he was like no, I am only the singer, and the song was so bad, it was so bad, we were like we can't be associated with this song, so yeah, but we got out of it. पैसे भी हमने वापस दे दिए थे उसके। पर उसके बाद फिर ऐसा नहीं हो जाता कि एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद केयरफुल हो गई थी, उसके बाद पता चल गया था कि गट फीलिंग को ज्यादा ट्रस्ट करना है, मायने देने हैं। हाँ। उसके बाद हाँ गट फीलिंग वाला एस्पेक्ट आ गया था, एंड बट ये आ गया था दिमाग में कि मुझे था, फॉर मी इट वाज लाइक कि एक बार बॉम्बे आके तो स्कैम होता है, तो मेरा हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा हो गया, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हाँ, अग्नि परीक्षा दे दी है। हाँ, एंड इट वाज वेरी चिल, आई वाज लाइक ओ हो गया। एंड मेरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था मेरा और उस लड़की का कि द अपकमिंग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड आर हियर, दे हैव बीन साइन्ड फॉर दिस म्यूजिक वीडियो एंड वेब सीरीज, आई कैन स्टिल शो इट टू यू, इट्स स्टिल ऑनलाइन। व्हाट? इमेजिन लाइक ये सब हो रहा है तो तुम्हें नहीं लगेगा ना कि ये फेक है, बट स्टिल सोचो कि सबकी गट फीलिंग ही आपको वहां ला रही है, तो हाउ मच यू शुड ट्रस्ट योर गट फीलिंग। और ये होता है गट फीलिंग बहुत बार। मेरे साथ एक्चुअली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द साउथ इंडस्ट्री शुरू से ही, लाइक मतलब बिफोर आई न्यू हाउ थिंग्स वर्क, आई वांटेड टू ऑलवेज वर्क इन द साउथ इंडस्ट्री बिकॉज आई फेल्ट दैट दे हैड लाइक रियली क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स, लाइक साउथ की मूवीज ही बॉलीवुड में रीमेक हो रही है एंड ऑल, तो आई वाज लाइक मेरे को बहुत पसंद था। तो मैं जानती नहीं थी लोगों को कि कैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो मेरे साथ भी ये बहुत होता था कि आते थे लोग एंड फिर ना एकदम से उनका हो जाता था बिकॉज दे यूज्ड टू कम टू मुंबई फॉर मीटिंग्स, ओके राइट, सो दे विल बी लाइक आज ही साइन करना है, एंड आई एम लाइक बट मुझे तुम्हारा कुछ काम नहीं पता, मेरे को कहीं दिख नहीं रहे तुम गूगल पे, मैं आज कैसे साइन कर लूं, एंड ऐसे में करते करते दे विल लाइक हम ज्यादा पैसे भी दे देंगे, एंड आई एम लाइक luckily I think I was really blessed that I met or made some really good friends when I came, and they had a bit more experience than me and they were like no listen, this sounds dodgy,
seems this thing. So I used to do this thing, and I can't believe that this is like a norm or normal thing, that when I have to go for meetings also, I would give my live location to a friend. Oh my god, that's so Like sad. it's so sad that it's come to that, but actual में शुरू में करना पड़ता था. Like literally ऐसा हो जाता था कि I remember I was going for this meeting and I was like, I don't know, this person sounds, वो होता है ना, legit भी है but your gut feelings like I know, off, and like, it's very weird. अब now I can clearly recognize it. Like अगर Yeah. कोई ज्यादा fake भी रहा है ना, तो उसमें भी मैं बस. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक्ट्रेस को इसी बंदे ने लॉन्च कर रखा होता है. अरे हाँ. इसको तो मैं लाया हूँ, इसको तो मैंने काम इनका दिया नाम है. कहीं नहीं होता गूगल पे. मतलब कहीं तुम ढूंढोगे, तुम 10th पेज पे पहुंच जाओगे, तभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा. Yeah. It's as, so इससे मुझे ना एक स्टोरी याद आई बहुत वैसे. तो एक बार मैं किसी there was this guy, he does castings, but ऐसे ऑफिशियल उसका कोई लोकेशन नहीं है, बट ही डज कास्टिंग. आई डोंट नो, स्टिल डोंट नो व्हाट ही डज. तो उसने मुझे कोई बताया था कि ये करके एक प्रोडक्शन हाउस है, दे आर डूइंग म्यूजिक वीडियोस, दे आर लुकिंग फॉर गर्ल्स. सो ही वाज लाइक, दिस इज आवर ऑफिस, गो देयर. सो इट वाज इन लोखंडवाला, सम माय गॉड, इट वाज समवेयर नियर फूड इन. You've been there? I've been there. So that I've been there. मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हाँ. और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन हाउस है. तो पहले तो मैं बहुत वो हो गई थी, फिर मैंने कहा मुझे लगा मुंबई में होता है ऐसा. और बॉम्बे मेरा यही सेम था कि बॉम्बे में एक्चुअली महंगी जगह है, क्या पता कौन कैसे एक्चुअली, करता बट है. आई सीन अ लॉट ऑफ ऑफिसेज ऑपरेटिंग Yeah. स्मॉल, ठीक है. तो वहां गई मैं एंटर करते ही ना कुछ एक वाइब होती है आपको ना हर लोकेशन के अंदर. मैं एंटर करती हूँ, सोफे है, लड़कियां बैठी हुई है, देयर इज सम फैट एस गाय सिटिंग ओवर देयर, एंड एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, एंड व्हाटएवर वहां का भी जो लोकल या मतलब उधर का जो कास्टिंग वाला पर्सन होगा, ही वाज देयर. ओह माय गॉड, दैट डे. तो आई वेंट देयर, और भी लड़कियां मेरे साथ बैठी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि चलो मेरे आसपास लड़कियां हैं. एंड आई गॉन वेयरिंग अ स्कर्ट एंड अ टॉप. उनका ड्रेस कोड भी उन्होंने शायद मुझे कुछ बताया था कि आपको स्कर्ट एंड टॉप पहन के जाना है. आई वाज लाइक फाइन, आई वेंट देयर. हाँ, yeah. है ना. तो आई वेंट देयर, फर्स्ट टाइम सिटिंग, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग. सो ही स्टार्ट शोइंग अस द म्यूजिक वीडियोस दे हैव ऑलरेडी डन. लेजिट है, बनाई हुई है म्यूजिक वीडियोस. द आर्टिस्ट इज ऑल्सो आउट, उनका जो भी नीस नेफ्यू व्हाटएवर इट वुड हैव बीन. तो म्यूजिक वीडियोस चल रही हैं, दिखा रहे हैं हमें, एंड मैं भी देख रही हूँ, अच्छी है. बात करते करते पहले मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो. मैंने बताया मैं यहाँ से हूँ. लाइक ओह, मेरा तो वहाँ पे फैक्ट्री का ये काम है. आई एम जस्ट लॉन्चिंग माय नेफ्यू, यू नो, हियर. हाँ, oh my god, yes. सेम गाय. ओके. Oh my god, I think yes. Or I don't know if more people have done this, but I know this story. So I'm launching my nephew. मेरा तो फार्मास्यूटिकल का काम, ये सब बताया उसने कुछ मुझे. मैं सुन रही हूँ बातें करते हुए. एंड ना जैसे ही सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, दिस इज अ सेपरेट सोफा, आई एम सिटिंग हियर. बात करते करते ना वो कुछ एक दूसरी लड़की से बात करते करते उसने मेरे यहाँ पे हाथ रख दिया, मेरी थाई. सो ही केप्ट हिज हैंड ऑन माई थाई. और ना मैं उस टाइम पे, देखो मैं दिखती बहुत बैड एस हूँ, मेरे को देख के तो मुझे लगता होगा ओ बड़ा बकचोद गर्ल, मैं बहुत फट्टू अंदर. मैं बहुत फट्टू भाई. मैं दिखाती है ऐसा ना कि, और मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरा इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज फ्रीज. तो मैं फ्रीज हो गई. And I'm like, okay, this is what everyone has warned you about. It's happening. And there are a lot of people in the room, right? तो उसने मेरा हाथ रखा और मैंने उसका हाथ उठा के ना साइड में रख दिया. And now I'm starting to plan how I'm going to get out of this situation. उनका जो कास्टिंग वाला बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, he's texting me from there. आप डिनर के लिए रुक जाओ, हम पार्टी करते हैं. And I'm looking at him, and I look at this guy and I'm like, मैं जैसे अभी बोल रही हूँ ना वैसे मैं कहा मेरी ना क्लास है, मेरे को उसके लिए निकलना है. किस चीज की क्लास है? मैं कहा मैं वो मेरा जिम का क्लास है, तो आई हैव टू गो. हाँ. My God, you're a bad liar. आई नो. उस टाइम तो मैं जिम जाती भी नहीं थी. एंड ही इज लाइक, रुक जाओ थोड़ी देर 1 घंटा रुक जाओ, सिर्फ ऐसे करके. दिस गाय एंड दैट गाय इज टेक्सटिंग मी अलग से. ही इज लाइक, अरे रुक जाओ, वहीं से बोल रहा है, अरे रुक जाओ ना आप, कुछ. तो मैंने बस मैसेज देखा एंड आई इग्नोर्ड द मैसेज एंड आई जस्ट टोल्ड. फिर मैं एकदम से अंदर से आया, क्योंकि कुछ लड़कियां चली गई थी, शायद उन्हें फीलिंग आ गई होगी, और कुछ आ रही थी और कुछ बैठी हुई थी. तो मुझे आया, मैंने कहा सौम्या तू बस भाग जा, अगर तू आज नहीं भागी कुछ भी हो सकता है. तो आई वाज लाइक नो यू नो व्हाट, आई हैव टू गो, आई एम सो सॉरी, आई विल मीट यू लेटर, आई विल गेट इन टच विद हिम. एंड ऐसे करके मैं करके ना बहुत निकल गई वहां से. ओ माय गॉड, मेरा जो उस टाइम मेरा पेट ऐसे हो रखा था कि by God, this could have been so bad. And और जैसे मैं ऑटो में थी, आई थिंक मैं घर जा रही थी, उस बंदे ने अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए थे. बिकॉज आई वाज लाइक मैं स्क्रीनशॉट करती हूँ इसको प्रूफ की तरह रखती हूँ मैं, कभी आगे मतलब इन केस नीडेड, लाइक एज women we operate like that, right? Which is so sad, right? Like our
first instincts are to safe keep ourselves. नहीं, you know what I hate about, not I feel सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, but हमारा instant response is freeze. I wish we are taught डिफेंस की क्लासेस या कुछ सेल्फ डिफेंस की, कि हमारा वो फ्रीज रिस्पॉन्स चला ही जाए. मेरा नहीं है. तेरा भी नहीं गया? नहीं, मेरा freeze response नहीं है. I actually learned self defense. So that's good, na? Yeah. So I used to be a cabin crew, and I've actually changed 3 companies. So I learned it Gone like through 3-4 times. So that is what, ना? Yeah. जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं हो तो आप कैसे निकलोगे? If you're doing the classes, क्योंकि आपका वो natural response है. To break that natural response, you need to go through that shock phase, ना? कि आप उस shock को इतना numb कर दो एक point पे कि now you're इधर आ. For me, when it happened, for like the first time it happened to me, this it was a producer, and like point move पे उसने मुझसे बस पूछा कि you'll have to compromise with me, like not this exact word, but like Yeah. he was like you have to be in a relationship with me through the duration of the film. Oh my god. And so frustrating. you know, my instinct response was I was like, of course I was disgusted, but my response was see, I understand this happens in the industry, and I'm sure there are people who would be willing to do that. I'm not that person somehow. Professionally, if you think I fit your character, you can go ahead. But personally, if you expect anything, I'm not the person, and I would be very offended if you ask me this again. Ooh. So this is my ऐसा एक based response to मेरा हमेशा ready होता है if anyone ever asks, which is so. But that's so nice. हाँ, because I'm like, see, of course I can't blame anyone. I don't want to play that game कि ओ तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने ये कर दिया, क्योंकि बहुत normal चीज है. But I think तुम्हारे अंदर फिर वो self esteem तुम्हारी उस point पे, whenever you're saying this, is at that level that you know. हाँ, because यार I don't think it's self esteem, it's my principles. I'm like, मुझे पता है मैं घर पे खाली बैठ जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, but मुझे पता है this is not where I'll come. What I mean by saying that is the fact that you're able to upfront tell a person this. No, but you have to see this understanding. There are people who are willing to do that. No, that's not what I mean. What I mean is, for example, if I was put into this situation, then I would never say this line. I would always make my way out of it कि नहीं, actually मेरे को इस dates पे मैं occupied हो गई हूँ. If I will never tell a person upfront. Why not though? गट्स नहीं थे उस टाइम पे. उस टाइम पे सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी. उस टाइम पे लगता था कि मेरा यहाँ पे कदम रखना इज लाइक अ गॉड गिफ्ट, विच स्टिल फील्स, बट अब बहुत नॉर्मलाइज हो गया है. अब बहुत सारी चीजें ऐसे लगती है कि हम अपने दिमाग में ना सिचुएशंस को और हर चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं. लाइफ इज अ वेरी नॉर्मल सीरीज ऑफ इवेंट्स. जस्ट इट्स लाइक, या दिस इज अ सेइंग दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. इट्स अ life is not one big step or one, you say, a leap of faith, right? Yeah. It is a leap of faith, but it is also small steps of courage that you take along your way. And that's what normalizes everything in your life. Yeah. वरना तो I think for me what really helped me in these kind of situations was, मुझे पता था कि अगर if nothing works out, मैं सब छोड़ छाड़ के मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी और वो ध्यान रख लेंगे मेरा. Like even if I don't do anything in my life, I knew कि my parents are there for me. I don't need to do anything that I'm not comfortable with. Because I would do this. I would call my mom. Like I would come out of the room and I'll call my mom and I'm मम्मी ऐसे बोल. Like I'm ulta, so I'm badass in front of people. and फिर मैं जाके मम्मी अरे कैसे लोग हैं यार, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ काम कर लो ना. मैं ना थोड़ी डिफरेंट हूँ इस मामले में. तो मेरे को ना पता नहीं स्टार्टिंग से इतना पता नहीं कहाँ से ये मेरे दिमाग में आया, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ. देयर वाज, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, व्हाट फीलिंग इट वाज. सिर्फ एक्टर की तरह नहीं, पहले मैं जॉब, मतलब जब मैं इंटर्नशिप और वो सब करती थी, तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में रहता था आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स, टू एवरीवन इन द वर्ल्ड. मतलब जैसे होता है ना कि आपके दोस्तों से लड़ाई वगैरह भी हो जाती है, तो मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिव मोटिवेशन हर चीज को लेकर रहती थी ना कि दिखाऊंगी, तुम देखो. काम भी करता है वो एक पॉइंट तक, बट मेरे पास वो कभी, जब मैं इधर आई थी मेरे पास वो बैकिंग ही नहीं थी कि मेरे दिमाग में वो थॉट भी नहीं आया था कि मैं घर जाके कुछ भी कर सकती हूँ. दिस इज माई ओनली शॉट. It was that level of pressure on me. Although मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था घर पे कि ये जब, तो उन्होंने बोला था कि बेटा किसी गलत चीज में डेस्परेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है. They were like it's okay. Yeah, it was not your you made your pressure yourself. मैंने अपने आप पे इतना प्रेशर फॉर नो रीजन डाला, और मेरा अभी रिसेंटली ये प्रेशर हटा है. लाइक रिसेंटली आई हैड सम कन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स अबाउट समथिंग, मतलब क्योंकि यार हमारी एक्टिंग का काम बहुत, इट्स अप्स एंड डाउन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आज है कल नहीं है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि बहुत अच्छा चला जाए करियर, बट व्हाट इफ नथिंग हैपेंस, व्हाट देन. तो मेरे पेरेंट्स ने स्वीटली मुझे बोला, मुझे रोना आ जाता है बोलते ही. दे वर लाइक तू हमारा बच्चा तब भी था, अभी भी है, तू घर पे आएगा हम तुझे खिला देंगे, तेरे को छत हम दे देंगे, और
and I was, मेरी आंखों में आंसू, मतलब बस them saying this ना, Yeah. it was like a safety net restored. Yeah. And then instantly जब से मुझे ये पता चला, मैं ऑटोमेटिकली इतनी ईज पे आ गई अपनी बॉडी में. हियर लाइक परसुइंग माय करियर आल्सो प्रेशर हट गया, Yeah. बिकॉज आई न्यू कि ओ फालतू में बढ़ा रखा है पता नहीं क्यों. And I'll tell you, this happened to me also कि मेरा तो बल्कि ये था भी नहीं, मुझ में वो प्रेशर वगैरह इसलिए नहीं था बिकॉज आई हैड ऑलरेडी प्रूव माई सेल्फ. लाइक आई केम इनटू द इंडस्ट्री व्हेन आई हैड ऑलरेडी लाइक यू नो, मैं एक सक्सेसफुल करियर हो चुका था, अच्छे खासे पैसे कमा चुकी थी, आई हैड माई ओन स्टैंडिंग, Yeah. राइट. तो उसके बाद जब मैं आई तो यस ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर वेरी अगेंस्ट इट बिकॉज दे थॉट कि यू नो, डर था जो डर. कि आई थिंक नॉर्थ में हर इंसान को, आई डोंट नो बाकी जगह है नहीं, बट नॉर्थ में आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमको मुंबई एंड बॉलीवुड एक बहुत अलग दुनिया लगती है. इट्स लाइक सम अदर वर्ल्ड व्हिच इज अवे फ्रॉम आवर रियलिटी. Yeah, they call it Mo Maya. Like that is for them Mo Maya. But more than that, it for me also when I came, I was like, how can I be part of this world? This is a different world. Yeah. Like, you know, it was very different. So, unka, it was all coming from fear of me being safe, fear of me It is always not about breaking that. my own heart. Yeah, Right? it's Like, always they about didn't that. want to see me sad. And I was like, nahi, Arey, I've got this and all. But it gets to you, right? Eventually it does. And over the years, I ran out of my savings Yeah, and yeah. everything. And फिर हुआ पापा मम्मी के पास पैसों के लिए जाना पड़ता था. तो I took that on myself very hardly कि you know, the level of independence I already had. तुमने खुद के हाँ. लिए एक पेडेस्टल बना दिया. I was like, पर मैं तो independent थी. अब उसके बाद जाना felt like such a this thing. And my dad said this one thing to me. He was like, किस चीज की कमी है तुम्हें? कभी फील करवाया हमने? ये क्यों सोचना पड़ रहा है तुम्हें? तुमको जो करना है तुम करो. उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. He was like, खुश हो, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. एंड यहाँ पे इतना दूर रह के ना कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि Yeah. एक्टिंग भी तो हम इसलिए करने आए थे ना क्योंकि हम खुशी मिल रही थी उससे. बट हम किसी अलग ही रैट रेस में, अलग ही जोन में We पहुंच got जाते into हैं. acting because it was not a part of a rat race, and then it became the rat race, and then we were not even rats, we were tiny mices trying to run and obstacles Yeah. को face करते हुए. कुछ अलग ही कहानी अलग ही बन है. गई. बट देन हाउ डिड यू फाइनली कम आउट ऑफ इट? I don't know, I started doing a lot of things that I never thought I would do. I'm a very hyperactive person. Like, I know. yeah, and I'm also kind of a person जो बड़ करनी अगर शुरू करिए तो मैं रात तक करती ही रहूंगी. And sometimes I'll say the most random stuff, like random words would come and form a sentence and it would not make sense, but because I'm blabbering, हाँ. कुछ बोलना है. ठीक है. And it's so weird. I'll tell you a little thing also. Class 4th तक I had selective mutism. Selective mutism is a condition जो बिग बैंग थ्योरी में उसको थी राज को, with women he couldn't speak. मैं जब स्कूल जाती थी मैं स्कूल में बात ही नहीं कर पाती थी किसी से. So the maximum conversation I ever had till class 4th would have been with my bench partner. Excuse me, can you pass that pencil? Can you give me an eraser? Oh my God, I can't imagine you have. Like, Imagine oh my God, that. the chubber this girl does. Imagine, like Yeah. मैं इतना, और मुझे बाद में पता चला कि कितना it's a very insane level of anxiety you have to be in to have Get selective that. mutism. Yeah. And I discovered that as a child. मैंने इतने सालों तक, और मतलब घर जाके ये नहीं होता था, घर जाके I was like घर का शेर. But स्कूल में जाते एंटर करते I don't know, I felt like I didn't belong to my school for a very long time. It was mostly because सब इंग्लिश में बात करते थे वहाँ पे. और मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है बच्चों की यार, कुछ स्ट्रॉन्ग बहुत नॉर्मल चीज है. Yeah. लेकिन आप अपने दिमाग में इतना बड़ा बना देते हो. उस टाइम बुलिंग वगैरह भी करते थे, वो छोटे बच्चे नहीं होते चिढ़ाने, ओह आई विल टेल यू मैम यू स्पीकिंग इन हिंदी. भाई कॉन्वेंट में इतना ड्रामा होता था ना इस चीज का. मैंने स्कूल में, मैंने 12th क्लास में मैंने पूरे स्कूल के सामने माइक पे बोला है 2 बार, बाय द वे, क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे ऐसे, और promising the entire school कि I will never speak in Hindi in the school campus again. Imagine 2 times. Why? Cause chul, convent school, we are English के अलावा हम बात नहीं करते. It helped of course with your vocabulary and everything. Imagine being there and now, मतलब फिर उसके बाद मुझे ये भी realize हुआ मेरा जो coping mechanism था that was humor. So the day I made someone laugh at school and people were looking at me, like there was finally someone looking at me and enjoying my company, and it became a pattern. मैं इतने ज्यादा मतलब वो होता है ना अपने आप को ह्यूमिलिएट करने वाला ह्यूमर यूज करती जस्ट टू मेक अ पर्सन लाफ, जस्ट टू फॉर्म दैट बॉन्ड, जस्ट टू हैव फ्रेंडशिप, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे उस टाइम पे. और वो इतना लंबा पैटर्न रहा, इतना लंबा, मैं बस
मुझे लगता था कि मैं बहुत तोप हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा जमीन के अंदर गड़ी हुई थी। मुझे रियलाइज, मतलब एक तो अच्छी चीज होती थी हमारे स्कूल में कि सेल्फ एस्टीम पे भी लेक्चर्स होते थे बच्चों को 5th क्लास तक के। इमेजिन सेल्फ एस्टीम पे लेक्चर हुआ था, क्लास 3rd 4th में रही होंगे शायद। तो उसमें ना वो लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है उसके पॉइंटर्स पीपीटी में लिखे हुए थे। और मुझे इतना अभी, मतलब आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग माय यंगर सेल्फ स्टैंडिंग देयर, और उसने जितने पॉइंट्स बोले थे ना वो सारे मेरे में थे। like I never had a positive outlook towards myself. I was always underconfident about everything, and वहां से यहाँ तक आना ना, it has been such a, मतलब अब बात करते करते रियलाइज हो रहा है यार कि आप कहाँ थे, and then now where you are at, right? I'm sorry. Oh no, it's okay. तो now just remembering that, like, it makes me very emotional, क्योंकि फिर मैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ easy था. There were a lot of heartbreaks when it comes to friendships. Like और मेरा, like as I told you, like friendships became a very important part of my life. And there was a time जब college में हम 5-6 roommates थे, मतलब flat we were sharing, and these were also my childhood friends. And फिर पता नहीं वही होता ना, as you grow up misunderstandings आती है, and then you grow apart. That happened, and now I, मतलब एक point ऐसा आ गया था कि मैं अपनी college life को remember ही नहीं कर पाती because I had no one to share those memories with. So that broke me. There were so many multiple incidents that kept on breaking me until I reached here. Yeah. क्योंकि उससे पहले मुझे अब रियलाइज होता है कि मैं सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जी रही थी कि टू मेक समवन लाफ, टू मेक मी फील सीन। बट देन आई थिंक एक्टिंग भी मेरी लाइफ में इसीलिए आई थी, टू मेक मी कम हियर। देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, आई स्टार्टेड सिटिंग देयर विद माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, एंड दैट वॉज वन ऑफ द मोमेंट्स वेयर मेरे को ना अपने आप को पहचानने में इतना टाइम लग गया, that who I was, what I liked. क्योंकि अभी तक तो you were this person जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है तो you become that, next level people pleaser, next level. और जब मैं एकदम अकेले पड़ी ना, it was so necessary for me. वो एकदम से फिर self identity crisis जो हो जाता है. I couldn't imagine myself without this circle of friends, and then after that like things started happening. The acting thing happened after that. Meditation उसके बाद मैंने start कर दिया था, not at a very professional level, but खुद के घर पे ही बैठ के. कैसे करते थे meditation? Breathing पे ध्यान, कुछ मंत्र चला देती थी मैं background में, बहुत basic level का I used to do. I used to sit there, मेरे रूम में lights जला देती थी, वो वाली होती है ना red lights और pink light जला के मैं ऐसे लेटी रहती थी और मैं ऊपर देख के बातें करती रहती थी भगवान से. तो मेरा ना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया धीरे करके. फेथ बढ़ता गया. फिर यहाँ पर आई, यहाँ की स्ट्रगल अलग थी, बट यहाँ से मुझे जितना लाइक ग्रोथ एज अ पर्सन दैट हैज बीन ना, अभी तो मेरी एक्टिंग जर्नी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी आई फील सो कि यार क्या रियलाइज कर लिया मैंने लाइफ में. I've come closer to who I was as a child. That's what I've realized. The closer you are to who you were as a kid, and by kid I mean that 4-year-old kid, na? That is your true self. And I've come there, and I'm so glad I did. That's so amazing. Thank you. But I'm actually genuinely so happy for you because I know हो जाता है यार स्कूल में, कॉलेज में, you know there's so many things happen, peer pressure हो जाता है, so many identities you form, you don't know, like एक थोड़ा खो से जाते हो आप. What happened when you actually talk to yourself? It was firstly a lot of, I realized I was very lonely from within, and धीरे धीरे ना बहुत weird था. पहले मैं बात करती थी, पहले मैं बहुत वैसे उस तरीके से बात करती थी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किसी का कभी बुरा करा है, what have I done, कि मैं, और मतलब सिचुएशंस भी ऐसे, मैंने कहा मैंने एक्चुअली कुछ गलत नहीं करा, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी. एंड फिर धीरे धीरे ना रियलाइज, पता नहीं बात करते मैंने कर लिया ना आपने, और कुछ होगा, मतलब यू सीइंग द शिफ्ट फ्रॉम द पेसिमिस्ट टू बिकमिंग एन ऑप्टिमिस्ट एंड फॉर सरेंडर. माय गॉड, इट टुक सो लॉन्ग टू कम टू सरेंडर. नो, बट बीइंग एबल टू सी कि ठीक है आपको पता है तो ठीक है कर लो. बट हाँ, उसमें मैं उस जोन में, आई वोंट से कंप्लीट सरेंडर, बट I started coming closer to surrender उसी टाइम पे, क्योंकि मैं यही बोलने लगी थी कि मुझे नहीं पता कि what is the bigger picture. I see my life as a movie. I see it from a point of view, what is the audience watching right now. And I'm like, अगर आप कुछ कर रहे हो तो शायद प्लॉट में अमेजिंग ही लग रहा होगा, तो आगे शायद
जितना तुम मुझे इतना कर रहे हो गो थ्रू, तो आगे कुछ ज्यादा आपने अच्छा करा है शायद मेरे लिए. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट. इट वाज अमेजिंग. But अभी the thing that you just said, उससे मुझे वो याद आया. You know how there was this reel that used to say कि if people were watching your movie, what do you think they would be screaming at you at this time? Yeah. What do you think people would be screaming at you this time? What time? अभी अगर तुम्हारी मूवी देख रहे हैं अभी तो, हाँ, अभी बोल रहे होंगे just keep swimming like finding Nemo. Just keep swimming. Just keep swimming. Yeah. So tell me something about this. Like you said, keep swimming. So what does this swimming look like? Okay, like what are the kind of routines or rituals you have? क्योंकि life तो easy नहीं हुई है. You still, have rejections on a very regular basis. There's a lot of unpredictability. You do a movie and then there's some gap, right? You have like a month in which you're doing back to back I know. work, right? And then 3 months of nothing. So how do you keep yourself sane in that time? I've become really patient now. And that has come from a lot of practices that I've built over time. Practices, as in I would see, the biggest shortcoming I have is discipline. I'm not a very disciplined person. I'm not able to do things consistently. But some things that really help me are, first thing, मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ. वो मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि तू सुनती रहा कर. और पता नहीं क्यों सच्ची में हेल्प करता है. इट काम्स यू डाउन. और मैं अब आई स्टार्ट सिंगिंग अलोंग. इट हेल्प्स मी. मेडिटेशन इज द अदर थिंग दैट बीच में मैं बहुत रेगुलरली कर रही थी. अभी मेरा छूट गया है, लेकिन अदरवाइज मेडिटेशन हेल्प्स यू सो मच इन, मतलब आप इतनी ग्राउंडिंग होती है आपकी मेडिटेट करने के बाद. एंड इट्स नॉट अबाउट थॉट्स कमिंग इन योर हेड. इट्स अबाउट जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वन थॉट. एंड मतलब आप इतना डीप चले जाते हो कभी कभी, आपको रियलाइज भी नहीं होता मेडिटेशन करते हुए. एंड इट रियली हेल्प्ड. अचानक से मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ गई थी मेडिटेशन करके. तो इट वाज लाइक थिंग्स आर हैपनिंग द सेम वे, बट दैट नॉइज इज गॉन. दैट नॉइज इन आवर हेड दैट्स कॉन्स्टेंटली देयर, वो गायब हो गई है. तो बहुत मिनिमाइज हो गई है. दैट हेल्प मी अ लॉट. Exercising is something that helped me. Exercise, so I literally anyone I talk to, exercise is one thing that helps you. I'm not that consistent with it, but exercising में especially strength training हो गई, योगा हो गया, ये 2 मैं करती हूँ. बहुत हेल्प करता है यार. और एनर्जी ड्रेन नहीं होती हूँ मैं, तो री-एनर्जाइज होती हूँ इन चीज़ों से. तो इट हेल्प्स मी अ लॉट. बाकी मैं वर्बल जर्नलिंग कहती हूँ इसे. वर्बल जर्नलिंग इज फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग अलोन इन माई रूम एंड रोज नहीं करती हूँ. जैसे कुछ चीजें बहुत ज्यादा गंदी चल रही है मेरी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी लाइक, hey और व्हाट्सअप, योर गर्ल सौम्या दिस साइड सिटिंग इन मुंबई राइट नाउ. आपको दिख ही रही होंगी मैं ऊपर से. तो यार मुझे ना आपसे बात करनी है. एंड आई टॉक लाइक दिस, मुझे ना आपसे बात करनी है ब्रो टू ब्रो. हाँ ओके, ब्रो टू ब्रो बात करनी है कि यार ये सियाप पे चल रहे हैं. एंड आई बड़ करके आई से, मैंने कहा मैनिफेस्ट मत करना ये कुछ भी, मतलब इट्स लाइक इन दिस बबल. हाँ, एंड आई टेल हिम एक कान से आप सुनो, दूसरे से निकाल दो. और फिर मैं पूरा अपना जो रैंट करती हूँ, रैंट के बाद मैं बोल देती हूँ आप बस मुझे गाइड कर दो. यू जस्ट गिव मी द स्ट्रेंथ और गाइड मी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी, मतलब मुझे पता है लाइफ कैसी जर्नी है. इट विल नेवर बी वन सिंगल थिंग. ऐसे अप्स एंड डाउन जाएंगे. आई एम फाइन विद इट. यू जस्ट, आप मेरे साथ रहो ना. आप मुझे स्ट्रेंथ दो ना. अगर आप नहीं आके स्ट्रेंथ दे पा रहे हो तो कोई साइन दे दो, जो मुझे कोई इंसान ला जाओ मेरी लाइफ में जो मेरी हेल्प कर दे. तो वो मेरा होता है एक वर्ब. तो कौन सा साइन, कौन सा स्ट्रेंथ मिला यार? आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये क्लैरिटी वाली थिंग दैट आई एम सेइंग ना, क्लैरिटी एंड काम दैट हैज कम इन माय लाइफ, इट वाज नेवर देयर. आई वाज ऑलवेज सो एंशियस अबाउट एवरीथिंग. और मैं इतना वियर्ड है, आई एम स्टिल हाइपर एक्टिव but I'm not anxious anymore. Yeah, like you found the balance between. Yeah, but I think your biggest sign was me coming to your life. Oh my god, definitely. Yeah, right? Yeah, you've opened up so many things for me. Like one of the, एक और मेरे, मैं मजाक कर रही थी. नहीं एक मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी पहले कि मैं ना बहुत, I was not very comfortable with my feminine side. And I was also not comfortable with girly girls. Yeah. मैं बहुत uncomfortable, like मुझे कोई girly girl दिखती थी ना, अगर उसने पिंक स्कर्ट पहनी है कुछ, क्या क्यों? And for me in my head it was very weird. कभी मैंने सोचा नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसे girly girls I used to think are red flags. Also people who are too sweet used to be red flags. और ये लड़की इतनी sweet थी, इतनी sweet थी ये लड़की मेरे साथ. और मुझे था मैं क्या चाहिए इसे मुझसे, इसे चाहिए क्या, ये मेरे साथ इतनी sweet कैसे हो सकती है, कुछ तो पीछे कुछ चल रहा है. और फिर वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट अ लॉट एंड मैंने कहा कुछ एजेंडा है ही नहीं इसका, तो ये तो नॉर्मल लड़की है. और फिर पता नहीं, फिर हमारी कुछ बातें भी हुई. देन आई स्टार्टेड थेरेपी आल्सो व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट. इतनी सारी चीजों से आई
like got out of my system. This feminine thing was a big issue, that I had an issue with females being feminine, which is so weird. मुझे वो था पता नहीं कि tomboyish होना चाहिए. You should be rough and tough. That was a problem with me. I worked on it. It got better. And I got introduced to therapy because of you, which is a blessing in itself, because otherwise तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती अभी. I don't know. मनी इश्यूज पे काम करा है मैंने. बहुत सारी लैक से आप आते हो तो उस पे काम करना, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट थेरेपी हेल्प्स यू विद एंड यू डोंट इवन रियलाइज दे आर इश्यूज. हमारे दिमाग में थेरेपी का पता है क्या है, कि अगर मैं पागल ही हो जाऊँ ना कि मैं अपना सर फोड़ने लगूं या मैं अपने बाल नोच दूं, तब मैं जाऊंगी. It's not that. It's not that. It's your everyday struggle. Yeah. You know, there was this one actress, and I can't remember the name, but she said, she was like, therapy is not like going to a doctor. It's not when you're sick you have to go to a doctor. She's like, therapy is like how I go to the gym for my body, I go to therapy for my mind. And it's true. Yeah, because it's not just fixing stuff, it's for growth. It's to opening to receiving your own gifts. You know, there's so many things हम अपने अंदर block करके रखते हैं. There's so many of our gifts. ये feminine वाला, I had the same thing. I thought like I have to be a tomboy. I can't like the color pink. But for me, this journey opened up when I was in COVID. My whole room was pink. And you know what I started doing? I would wear pink. My blankie was pink. My bedsheet was pink. And I started accepting pink. I started accepting my feminine side. I'm like, why do we have this perception that feminine is weak? Yeah. You know, why is it अगर मैं रो रही हूँ तो वो weakness का sign है? Because मुझे school में, and if you're a girly girl, you're dumb. हाँ, or that, like there are so many stupid stereotypes. Like for me, the crying thing came from when I was in school. I used to get bullied, and there was this one girl who said once, because मेरे को बहुत जल्दी रोना आ जाता था, मैं बहुत sensitive थी, बहुत emotional थी. तो this one girl was like, ऐसे लोगों की sympathy लेने के लिए ना बार बार रोने की जरूरत नहीं है. And from then I decided I'm never gonna cry in front of people. And I was like, when I grew up and I realized what I had done to myself, how I had closed myself, जो walls वगैरह मैंने create कर ली थी, they were only sabotaging me. No one else were they hurting. They were only hurting me. Yeah. So in COVID, I reinvented myself. I started accepting myself. I started accepting my femininity, and I realized कि from your feminine energy is where your receiving also starts. Yeah. We are so uncomfortable receiving. You know what really helped me also? You showed me this movie called Legally Blonde. Yeah. It opened up a lot of things for me. I was like, I love that film. And I started seeing everything in a very different way, because जो ऑडियंस के दिमाग में उस टाइम चल रहा था, जो कैरेक्टर्स के मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था एग्जैक्टली, कि क्या स्कर्ट पहन के आ गई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, क्या कर लेगी. I was like, oh, she's doing everything a man is doing, but why am I like looking down upon her? Judgments, right? Just because she's looking pretty, or she's wearing a cute skirt and has a tiny little dog with her. Yeah. It really opened up a lot of things for me. Yeah. It's an amazing movie. Every girl should watch it. Every girl should watch this movie. No, definitely. I also love that movie because it's also about how easily we underestimate people. Yeah. And by people, I also mean so many times we end up underestimating ourselves so much. Like I know, ever since I came to Mumbai, like initially I also came very confident, but I don't know where along the way, you know, I lost a lot of the plot. And but when I started finding my way back, I was like, dude, why am I doing this to myself? Why, like, you know, I'm hurting my inner child so much by the kind of things I say to myself. Such self-depreciating things you say, the overcritical. I'm not saying don't like be completely delusional about who you are, but यार अपने आप से थोड़ा प्यार से बात कर लो. हाँ. अपने आप को थोड़ा प्यार दे दो. इससे दिमाग में आता है कि तुम अपने बच्चे के साथ कभी ऐसे बिहेव करोगे. You know, मेरे को जब बहुत गुस्सा आता है ना, like suppose मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, like बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, and there are things I know that would hurt you, or I could say certain things that I know would really end up pinching you, but I won't say it. If I can show so much love to you, why can't I do it to myself? Yeah, I know. Right? अपने आप पे जब गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी बोल देते हो अपने आप को, पर दूसरे को नहीं बोल रहे, तो वही सेम प्यार अपने आप को दे दो ना. हाँ यार, so important. Yeah. So okay, so you said you went to therapy, and what other things did you do? Mainly, I think therapy was my turning point for everything, for every single thing. Yeah. Like with my friends, and I started accepting friendships because वो मेरा ना friendship का थोड़ा trauma हो गया था, जैसे मैंने बताया ना, because friendship breakup, it really like
does something to you. Yeah. मेरा फ्रेंडशिप से ट्रस्ट ही उड़ गया था एक पॉइंट पे. I was like मुझे फ्रेंड्स बनाने ही नहीं है लाइफ में, मेरी फैमिली है काफी है. फिर धीरे धीरे जब थेरेपी से भी चेंजेस आए and वो सब, फिर और मैं आई तुम्हारी तुम आई जिंदगी में. मैं तो तेरी दोस्त बनूंगी. हाँ, मैं तो बनना चाहती हूँ यार. I think I literally not just weaseled my way in. I was like, she had all these walls, and I would like keep hammering on the walls. I'm like, देखो problem क्या है? तू खुल क्यों नहीं रही? बात क्यों नहीं कर रही? Real हो जा ना थोड़ा. And she said, नहीं होना मुझे. I'm like, Oh my नहीं, पर मैं हो रही हूँ, तू भी हो जा. And then I think somehow, I don't know when it happened, but I also don't know when yeah. it happened, but it happened, and then I started accepting friendships for how they were, how they came to me, and ऐसे उसे नर्चर करने लग गई कि जैसे हमारी जैसी फ्रेंडशिप है वो वैसी ही रहेगी. अगर मैं किसी और को जैसे आज मिली हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो भी मेरे लिए एक दोस्ती है यार. वो मेरी कम टाइम पे, लेकिन वो भी मेरे लिए दोस्ती है. उससे मैं अगर 10 दिन और मिल गई तो मेरा थोड़ा अच्छी फ्रेंड बन जाएगा, अच्छा फ्रेंड बन जाएगा. वो मैच्योरिटी आ गई. मैच्योरिटी आ गई. वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी वैसी नहीं रही कि अब तू मेरी दोस्त है तो तुझे मेरे लिए नस काटनी पड़ेगी. वो वाली बुलशिट नहीं है. अब बहुत मैच्योर कन्वर्सेशंस हो गए अबाउट व्हाट फ्रेंडशिप इज, व्हाट बाउंड्रीज आर, व्हाट कम्युनिकेशन इज. बाउंड्रीज इज सच एन इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज फ्रेंडशिप में इतनी इंपॉर्टेंट है, वो रियलाइज हो गई, व्हिच इज व्हाई वी आर एबल टू हैव सच अ हेल्दी फ्रेंडशिप. आई वुड like I think for me the biggest gift that you've given me is that I was able to say no to my close ones. वरना बाकियों को बोल सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है. मुझे था, पर that was still getting better, but like my close people I was like, नहीं, इनके लिए तो करना ही पड़ेगा सब ना. But उस चक्कर में my inner child was not happy, right? I think with you gave me this, you created this space for me where I could keep myself first. Yeah. Like you kind of taught me to, it's okay to say no. Like, you know, if you don't feel like talking to me right now, we don't have to talk right now. Yeah. You know, and that became such a, like, I remember this legit one time where I was like, सौम्या अभी ना ज्ञान का मन नहीं है, अभी चुप हो जाओ. हाँ, अभी सुन ले. हाँ, अभी बस like just don't. And I think that felt so liberating where you know I could say this. हाँ, नॉर्मली की मत दे ज्ञान भाई, सुन ले. हाँ, अभी so that I think those kind of friendships are very But important. I was also like practicing saying no at that time, but it worked. I think maybe that's why we met. Like हर इंसान आप जिससे मिलते हो एक लाइफ में किसी रीजन से आता है. हाँ. रीजन और अ सीजन or a Reason or lifetime. season. Yeah. Whatever it is great. Yeah. And I think having a friend like this in Mumbai where you already do get lonely, it's a अरे gift. बस करो यार, लोग जेलस हो जाएंगे, नजर उतार देते हैं थोड़ी सी. हाँ. Okay, all right. बहुत सारी serious बातें कर ली हमने. Okay, let's have some fun. Okay, so we're gonna play this game called Rapid Fire. Okay, Okay, and you have to go really fast about it. I'll try. Let's go. Ready? If you had a superpower, what would it be? To be able to understand what animals are saying. Cats, Cats particularly. are saying, oh my god, I would love to talk to every cat. And they could also be secret agents in a way. What is the superpower you would like to have on set? It's very simple. I want to be able to take multiple naps on a set. I can Like do be that. I do constant. that. I know that. What is one dream role of yours? I would love to do something जिसमें which would be something like Gangubai wala, Okay. and also Piku is also great again, but Barfi mein Priyanka's character, something like that, because that's so Rapid fire, Sorry, right? sorry. Yeah. If you had to swap lives with one celebrity, who would it be? क्लीशे आंसर दे दूं? हाँ. आलिया भट्ट. हाँ, ठीक है. If you had to go on a road trip with a celebrity, who would it be? Can it be with the director? Anyone. It would be with Imtiaz Ali sir, and I will not talk to him about Tamasha. Okay. मतलब मैं उनकी फिल्म्स के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, उनसे उसके अलावा बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि समझ से यार फिल्मों के बारे में उनके पीछे ही पड़ जाता है कि But why Imtiaz Ali sir? Because I love him, like of course I love his cinema, that's why I want to hang out with him, but मुझे उनके सिनेमा के बारे में बात नहीं करनी, मुझे वैसे जानना है कि how, मतलब Like what kind of a person would make movies मुझे like लगता है वो this? चिल आदमी है, अच्छा. तो मुझे उनके साथ चिल करने में मजा आएगा. Okay. If you had to make a comic pairing with someone like SRK and Saif, who would it be? कॉमेडी पेयरिंग अगर बेटी और फादर वाला कुछ कॉमिक टाइमिंग वाइज, आई थिंक गोविंदा सर के साथ मजा आएगा. The right answer was me, by the way. Anyways, the best cop मतलब इसकी in इतनी तारीफ कर दी फिर भी इसका मन नहीं हो रहा है. the best cop in Bollywood. लाइक नॉट कॉप बट डिटेक्टिव काइंड ऑफ आंसर हो सकता है. Okay. विद्या बालन इन कहानी. Ah, right. Yeah. Right. Your favorite negative character? नवाजुद्दीन सिद्दीकी in 2 films, बदलापुर Hmm. and
रमन राघव करके थी ना फिल्म। एक तो वो सारे कैरेक्टर्स ही अमेजिंग करते हैं, बट दीज टू फिल्म्स वर माय गॉड सो Okay, rapid fire. यार थोड़ा सा तो नहीं, rapid fire. If there was a lizard in your room observing you all day, what would she think about you? she'll think I'm crazy because मैं कभी सो रही हूँ बट उसके 1 घंटे के बाद मैं इतनी हाइपर एनर्जी में मैंने 4-5 चीजें साथ में कर ली होंगी। Okay, what's your favorite or funniest memory from set? I think it would be my first set पे मैं पहुंची नहीं थी। Before that, my first ever show that I did Sisterhood. उससे पहले हमारी वर्कशॉप्स हुई थी। तो उसमें बिकॉज मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो जो हमारे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुझे टीचर की चमची की तरह बिहेव करना है विदाउट मेकिंग इट वेरी अपफ्रंट। और मैं फर्स्ट डे टीचर की चमची बन के ही घुसी थी कि वॉक स्ट्रेट, नो से इट आउट लाउड, और ऐसे करके मैं थी। तो इन लोगों को लगा मैं एक्चुअली वैसी हूँ। तो लास्ट डे व्हेन द शूट गॉट फिनिश्ड दे रियलाइज दैट वाज एन एक्ट दैट आई डिड ऑन द फर्स्ट डे एंड दे वर लाइक वी ऑलवेज थॉट यू वर अ बिच, वी थॉट यू वर अ लेजेंड बिच। Kiara, Yeah. Okay. What is the weirdest thing you've done for a role? वेरी सिंपल, वेरी क्लीशे। मैंने वही क्राइंग वाला सीन था, नहीं आ रहा था, रोना नहीं आता है, बहुत बार रोना। तो मैंने बहुत गंदी चीज करी थी कि मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे आंखों में डाल दी थी क्योंकि मेरे आई ड्रॉप्स नहीं मिल रही थी। और फिर मैं थोड़े टाइम के लिए मुझे रियलाइज हुआ कि यार ओ माय गॉड देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स इन हियर, आई कैन एक्चुअली गो Blind? Yes. एंड देन मैंने फिर सॉरी बोला भगवान को और फिर कभी नहीं करा वो। And I got teardrops after that. Yeah, good. Or glycerin. What's your dream role? You know, I watched this movie called Lucy. Have you watched it? Yeah. वो कैरेक्टर का कभी भी कुछ इंडियन वर्जन बनेगा ना, I would love to. That is a film I've watched 10 to 15 times. And also, उड़ता पंजाब में आलिया's role. Nice. Okay, if you had to describe your journey in a movie title or a song, what would it be? It would be a song from किशोर कुमार सर। It's called रुक जाना नहीं तू कभी हार के। Sing ऐसे क्या poem रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। मैं मुंबई लोकल में सुनते हुए जाती थी गाना। Oh, Yeah. so cute. There's also one more. Yeah. मेरी मॉम ने मुझे एक बार, मैं बहुत रफ पैच में थी, उन्होंने रैंडमली मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करा था एक गाना विच इज ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। So ये वाला गाना भी मुझे गूज़बम्स देता है जितनी बार मैं सुनती हूँ। Wow, that's so sweet. Okay, थोड़ा फिर से serious हो गया. Let's play more. Okay, so there's another game called Two Truths and One Lie. So basically, you're gonna give me 3 situations, and I'm gonna guess which one is the lie out of that. But it has to be from the acting journey. Once my co-actor hit me in the face during a scene. एक scene चल रहा था actually scene चल रहा था और बहुत it's like time run out हो रहा है, and my problem is that मैं बहुत पानी पीती हूँ, तो मैंने वो सीन रुकाया था क्योंकि मैं सुसु करने जाना था। And I was once like a director abused me on set because I was not able to perform. What do you guys think? I think the first one's a lie. Huh. You're wrong. The last one? Yeah. I was confused between the first. I was not like, अरे वो सीन चल रहा था और उसमें we had to like कुछ फोन छीनना था हमें एक दूसरे से और वो फोन ही मेरे मुंह पे लग गया था। Oh, accidental mistake. I had to frame my question in a way that so. Smart. Okay, that's it for our episode today. Why don't you share something that you feel you've learned in your journey that could help others in the industry? What would be your one piece of advice? My advice to anyone listening, be it from the industry or not from the industry, would be that आप जितना हो सके अपने करीब आओ, in a way that talk to yourself, meditate, and अपने आप को ना life जीने के लिए पनिश करना बंद कर दो। Do whatever you're doing in life with free will and हथकड़ियाँ अपनी छुड़वा दो। And just live your life fully. Do whatever you want to do in life. Just be happy in whatever you're doing. Yeah, nice. Yeah. Perfect. Thank you so much for being here, Soumya. Thank you so much for I'm so having me. glad we had such a beautiful conversation. I had a really amazing time. Same. Thank you. Thank you for having me. Yes. And guys, ये तो बोलना भूल जाती है लेकिन मैं बोल देती हूँ. Don't forget to like, share and subscribe to Beyond the Spotlight with Garima. Yes. Thank you. Mahalo. कलियुग में देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है। जो ब्रीदिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं होगा और उसके लिए अपने आप को समझना जरूरी है। When you understand yourself, you will know how you will react
There are far more real people in other fields than our industry. Okay. Because and I don't blame them. Speak to somebody about it. Speak your heart out. Empty yourself out. You'll feel better. It's a part of your healing process.